Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, dear students, in the new lecture of the molecular genetics. In this lecture, we will discuss about the first step of the gene expression, that is the transcription. What actually the gene expression means. The genes that are part of the DNA, these genes and these nucleotide sequences, this DNA will not directly play a part in the cell. This will convey a message in the form of the messenger RNA, and this messenger RNA will translate into the protein. This whole process, this whole mechanism is called central dogma of the molecular biology. We will discuss about the first step of this central dogma, that is called the transcription. Genetic language of the DNA molecule is conserved through replication, that is homocatalytic process. तो जीन में जो सेल में जेनेटिक लैंग्वेज कंजर्व होती है, डीएनए की कॉपीज बनती हैं, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, दैट इज द homocatalytic process, while the transcription is the heterocatalytic process. The genome is full of critical information. जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी सेल की जीनोम में मौजूद होती हैं. The DNA molecule itself cannot perform cell process directly. जो DNA है वो डायरेक्टली कोई प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकता. Instead of it, its information is conveyed to RNA molecule which carry out the instruction to it contains. ये डायरेक्टली कोई फंक्शन परफॉर्म करने की बजाय ये क्या करता है डीएनए, इट विल कन्वे इट्स इंफॉर्मेशन, इट कन्वे इट्स इंस्ट्रक्शन, इट्स मैसेज टू द आरएनए मॉलिक्यूल. व्हेन this RNA molecule is synthesized, this RNA molecule is translated into a specific protein under the control of the DNA. The concept that genetic information flows from DNA to RNA to protein has long been a central theme of molecular biology. This concept of the long theme or the theme in the molecular biology, that is from DNA to DNA, it is called the DNA replication. It mainly occurs during the cell division, while the process during which the RNA is synthesized by using DNA as a template, a single strand RNA is synthesized. This is called the transcription, DNA to RNA. And the third step is RNA to protein. This is called the translation. This whole process from DNA to RNA and RNA to protein is called the central dogma of molecular biology. And now we will discuss the first step of the gene expression, that is the transcription. Transcription is experimentally elucidated by the Roger Korenberg. Like so many other genetic events, transcription is also a very is a marvel of efficiency. It's a great efficient process. There is no chance of the mutation, no chance of the error in the transcription. It is highly organized and guided by special codes on DNA itself. ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है ये ऑर्गेनाइज प्रोसेस है, उसकी जो गाइडेंस है, इसका जो मैसेज है वो डीएनए कोड से मिलता है. It is important to keep in mind that all RNA, it may be the transfer RNA, ribosomal RNA, is synthesized by similar process. जितने भी RNA हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो सिमिलर प्रोसेस से ट्रांसक्राइब होते हैं, लेकिन जो RNA अमीनो एसिड को कोड करता है वो मैसेंजर RNA होता है. The other RNAs have important functions. They just do not provide the code for amino acid in a protein as messenger RNA. जो दूसरे RNA है जिससे हमने बात की, ट्रांसफर RNA और राइबोसोमल RNA, उनके भी अपने फंक्शंस हैं, लेकिन वो मैसेंजर RNA की तरह अमीनो एसिड का कोड प्रोवाइड नहीं करते. अमीनो एसिड का कोड सिर्फ और सिर्फ कौन प्रोवाइड करेगा, वो सिर्फ मैसेंजर RNA प्रोवाइड करेगा. That's what is called the messenger RNA, the RNA having the message for the protein, for the amino acids. During transcription, an RNA molecule is synthesized during the course on DNA as guided or template. ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो आरएनए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है, जो क्या करता है, दैट यूज अ कोड ऑफ द डीएनए टेम्पलेट एज अ गाइड. तो आरएनए की सिंथेसिस में डीएनए का टेम्पलेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्यों? डीएनए का टेम्पलेट को यूज करके आरएनए सिंथेसाइज होगा, और ये टेम्पलेट वही स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा जो एक जीन के तौर पर एक्ट करेगा, जो एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड को कोड करेगा. मशीनरी फॉर
transcription, that is the requirements for the transcription. Transcription process requires different components. The most important is the DNA template, by using which we can synthesize our specific messenger RNA and nucleotide sequence. Ribonucleotides, RNA polymerase, the most important enzyme that use for the addition of the ribonucleotides with each other by using the DNA as a template, and the cofactor, that is the magnesium and manganese, that are required for RNA polymerase. Now we will discuss one by one. फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए टेम्पलेट वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है जिसको यूज़ करके हम अपना मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज करते हैं, और ये बहुत छोटा सा सेगमेंट होता है जिसको हम स्पेसिफिकली जीन कहते हैं. इन केस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन द होल जीनोम इज रेप्लिकेटेड, व्हाइल इन केस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन a specific sequence of the nucleotide, a specific sequence or the segment of the DNA will transcribe that will convey the message that is responsible for a specific protein. DNA is a blueprint that indicates which kind of proteins to make and how to make them. This blueprint exists in the order of triplets along the DNA strands. This order of triplets is called the gene. Gene is segment of DNA and present on any strand of DNA. It may be the 5' to 3' and 3' to 5'. किसी भी स्टैंड पर ये मौजूद हो सकता है हमारा जीन. अब उस स्पेसिफिक जीन को हम क्या करेंगे, ट्रांसक्राइब करेंगे, वही हमारा टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करेगा. For example, there are two strands of the DNA. One is the upper strand, that it may be the is 5' to 3', and second is 3' to 5'. As we know, the DNA is an anti-parallel structure. तो जीन एंड जीन, these are different genes. अब जो भी जीन रिक्वायर्ड होगा सेल के लिए, वही स्पेसिफिक जीन हमारा टेम्पलेट होगा. इसको हम ट्रांसक्राइब करेंगे, इससे मैसेंजर आरएनए बनाएंगे, और ये मैसेंजर आरएनए फिर प्रोटीन के लिए एक्ट करेगा, प्रोटीन सेंसेस के लिए यूज होगा. There are two strands, जैसे हमने डिस्कस किया, तो 5' to 3' स्टैंड है और दूसरा स्टैंड 3' to 5' स्टैंड है. तो दिस polarity is called anti-parallel structures. एक स्टैंड हमारे पास टेम्पलेट के तौर पर काम करता है जिसको यूज करके हमने अपने मैसेंजर आरएनए बनाना है, और दूसरा स्टैंड, इस टेम्पलेट स्टैंड को हम एंटी सेंस स्टैंड भी बोलते हैं और नॉन कोडिंग स्टैंड भी बोलते हैं, जबकि जो अदर स्टैंड है दैट इज कॉल्ड द कोडिंग स्टैंड और द सेंस स्टैंड. इसको कोडिंग स्टैंड क्यों बोलते हैं, बिकॉज द आरएनए दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग द टेम्पलेट स्टैंड दैट इज सिमिलर विद द कोडिंग स्टैंड एक्सेप्ट द यू. टी की जगह चूंकि वहाँ पे यू होगा, थायमीन की जगह यूरासिल होता है इन आरएनए, तो इसमें बाकी सारा सेगमेंट जो है ना वो सिमिलर होगा कोडिंग स्टैंड के एक्सेप्ट द यू. देखें इसमें जी, तो टी की जगह यू आ गया, सी की जगह सी, बाकी सारी जो सेगमेंट है, सीक्वेंस है, वो सिमिलर है कोडिंग स्टैंड के एक्सेप्ट द यू. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कोडिंग स्टैंड. जो 5' to 3' लीड कर रहा है, इसको हम सेंस स्टैंड भी बोलते हैं, इसको हम नॉन टेम्पलेट स्टैंड भी बोलते हैं. ठीक है, तो देयर आर टू स्टैंड ऑफ द डीएनए, वन इज 5' to 3', सेकंड 3' to 5'. इस 3' to 5' स्टैंड को हम यूज करेंगे एज अ टेम्पलेट के तौर पर. वो डिपेंड करता है जीन पर, लेकिन जो सेंसेस होती है वो 5' to 3' होती है, क्योंकि जो डीएनए सिंथेसिस है और आरएनए सिंथेसिस दोनों सेम डायरेक्शन में हो रही है. ठीक है, तो अब इस 5' to 3', यहाँ पे 5' आ जाएगा और यहाँ पे 3' आ जाएगा, तो इस 5' to 3' डायरेक्शन में ये सेंसेस होगी, जिस तरह ये हमारे पास आरएनए सिंथेसाइज हुआ. तो इनमें से कोई एक स्टैंड भी हमारे पास जो है ना वो एक्ट कर सकता है एज ए टेम्पलेट. तो मेनली हम अगर इस स्टैंड पे हमारे पास जीन मौजूद है अपर स्टैंड पे, तो देन वी कैन सिंथेसाइज अवर जीन फ्रॉम दिस डायरेक्शन. इस डायरेक्शन से हम इसको यूज करेंगे. क्यों, सेंसेस विल आज विल अकर इन 5' to 3' डायरेक्शन. तो सेंसेस किस डायरेक्शन में होगी, 5' to 3' डायरेक्शन में होगी. Okay, so there are two strands. One is called the coding strand, that is also called the non-sense strand, and second is called the temporal strand, that is also called anti-sense strand, or that is also called non-coding strand. Ribonucleotides, second requirement of the ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में यहाँ हमारे पास जो है एटीपी आएगी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी इंस्टेड ऑफ द थायमीन. थायमीन की जगह हम यूटीपी का इस्तेमाल करेंगे. Then we have the most important enzyme, that is called the RNA polymerase. RNA polymerase is the large complex enzymes
Okay, and it is responsible for multi-purpose in the RNA transcription process. Okay? This enzyme, polymerase enzyme is more multi-purpose than the DNA polymerase because RNA polymerase works alone and does not require helicase. It does not require the primer. तो इसको हेलिकेज भी नहीं चाहिए क्योंकि ये डीएनए को खुद ओपन करेगा और उसको प्राइमर भी नहीं चाहिए और क्योंकि ये डायरेक्ट सेंस से स्टार्ट करते हैं. In prokaryotes there is single RNA polymerase that is responsible for all types of RNA. It can bind to DNA and unbind it एज वेल एज सिंथेसाइज आरएनए. ये डीएनए के साथ बाइंड भी करेगा, उसको अनबाइंड भी करेगा और आरएनए को सिंथेसाइज भी करेगा. दैट्स व्हाई इट्स अ मल्टीपर्पज एंजाइम एज कंपेयर टू द डीएनए पॉलीमरेज. तो प्रोकैरियोट में एक ही आरएनए पॉलीमरेज तमाम टाइप ऑफ आरएनए को सिंथेसाइज करेगा, जबकि यूकैरियोट के केस में 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं. If you look at the structure of RNA polymerase, prokaryotic RNA polymerase, it consists of 5 subunits in the core enzymes. Core enzyme में 5 subunits होते हैं, 2 alpha, 1 beta and 1 beta prime and second is the omega. ठीक है, तो इसको हम core enzyme बोलते हैं जब इसमें 5 subunits होंगे और जब sigma subunit आएगा that will act as a hollow enzyme. ठीक है, तो hollow enzyme में जो सिग्मा फैक्टर जब आ जाएगा उसको हम होलो एंजाइम कहते हैं. अब सिग्मा फैक्टर का काम क्या है? इट विल रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डीएनए फॉर द अटैचमेंट फॉर द बाइंडिंग ऑन द डीएनए सेगमेंट. What are the function of each subunit in the RNA polymerase of the prokaryote? Alpha determine the DNA to be transcribed. ठीक है, अल्फा उस डीएनए को डिटरमाइन करेगा जिसको हमने ट्रांसक्राइब करना है. बीटा कैटलाइज पॉलीमराइजेशन एंड बीटा प्राइम बाइंड एंड ओपन डीएनए टेम्पलेट. It is responsible for unwinding. The specific function of the omega is not known, completely known, while the sigma factor is responsible to recognize the initiation sites, that is called the promoter. ये initiation site को recognize करेगा, then it will dissociate, and after that the other subunit will perform its function in the process of transcription. A mechanism of DNA transcription. The process of the transcription occurs in 3 different stages. One is called initiation, second is called the elongation, and third is the termination. Initiation इसको हम अगर डायग्राम से स्टडी करना चाहें तो this is our DNA template by using which we can transcribe our specific messenger RNA. RNA polymerase having the sigma factor. It will recognize a specific part in the DNA. It will bind and recognize and bind a specific part in the DNA. Then this process is called the initiation. ठीक है, इसको हम initiation बोलेंगे. Then elongation में क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड आकर अटैच होंगे. न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे. हमारा ये जो RNA polymerase है ये by using this template of the DNA we can use our we can synthesize, we can add our ribonucleotides complementary to the nucleotide that are present, that are found on the DNA segment. तो sigma factor डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है. अब ये सारा प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियोटाइड अटैच हो इसको हम elongation बोलते हैं. एंड एट द एंड जब रो फैक्टर आएगा और ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और RNA कंप्लीट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड द टर्मिनेशन. तो बेसिकली देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स: इनिशिएशन, elongation एंड टर्मिनेशन. टर्मिनेशन में कंप्लीट आरएनए सिंथेसाइज होकर रिलीज आउट हो जाता है. Initiation of the transcription requires the very specific site on the DNA on the gene that is called the promoter region. Initiation के लिए जो DNA पे RNA को स्पेसिफिक साइट चाहिए उसको क्या कहते हैं? promoter region कहते हैं. This region consists of 2 sets of DNA sequences located just before insertion site. जिस जगह से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है उस जगह से कुछ न्यूक्लियोटाइड पहले हमारे पास एक सीक्वेंस, कंसेंसस सीक्वेंस होता है जिसको हम प्रोमोटर साइट्स कहते हैं. तो प्रोकैरियोटिक केस में द फर्स्ट सीक्वेंस इज अबाउट 35 न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द इनिशिएशन साइट एंड द सेकंड इज अबाउट 10 न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द इनिशिएशन साइट. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ promoter is to provide a position for initial binding of the RNA polymerase. promoter का बेसिक फंक्शन क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज. चूंकि आरएनए पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडिशन ऑफ द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बाय यूजिंग डीएनए एज अ टेम्पलेट, तो आरएनए पॉलीमरेज का उस साइट पे अटैच होना, बाइंड होना बहुत जरूरी है. तो वो किस साइट पे बाइंड होगा? वो प्रोमोटर साइट पे बाइंड होगा. प्रोमोटर से स्टार्ट नहीं होती ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट एट द पॉइंट दैट इज कॉल्ड +1. हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे.
तो वो पॉइंट जहाँ पे RNA polymerase बाइंड करेगा, दैट इज कॉल्ड द promoter. The promoter sequences are not highly varied and they tend to be rich in adenine and thymine base pair. तो promoter region में ज़्यादातर एडेनिन और थायमिन बेस पेयर होना चाहिए, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड होता है और इनको इजीली ब्रेक किया जा सकता है और इजीली DNA को अनबाइंड किया जा सकता है बाय यूजिंग RNA polymerase. दिस इज आवर प्रोमोटर रीजन्स. ठीक है, अब प्रोमोटर रीजन को समझने के लिए हमारे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं. वन इज द 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड, सेकंड इज कॉल्ड द 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड. क्योंकि ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड ये हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है. ठीक है, क्योंकि जो सेंसेस होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है. तो ये जो रीजन है इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं. जो अपर वाला स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दैट इज कॉल्ड द नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, दैट इज आल्सो कॉल्ड द नॉन कोडिंग स्ट्रैंड और द सेंस स्ट्रैंड. जबकि टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं. ये +1 साइड वो साइड है जहां से हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी. ठीक है, +1 साइड के जो अप तरफ है, अपस्ट्रीम रीजन है, इसमें -10. अब यहाँ से जो +1 है इस तरफ +2 जाएगा, +3 राइट साइड पे, जबकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास -1 -2 -3 अप टू यहाँ पे जो -10 का रीजन आता है, जिसमें टाटाट बॉक्स से जो कंसेंसस रीजन है इसको हम प्रिग्नो बॉक्स भी कहते हैं. ये -10 रीजन और ये -35 रीजन जो +1 से -35 न्यूक्लियोटाइड अवे हैं और -10 न्यूक्लियोटाइड अवे हैं. दिस इज द प्रोमोटर इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट. ठीक है, this is the promoter in case the prokaryote RNA polymerase recognize this region and bind this region, जबकि जो ट्रांसक्रिप्शन होगी वो इस रीजन से स्टार्ट होगी. ठीक है, RNA ट्रांसक्रिप्ट किस ट्रांसक्रिप्ट बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस जो लोअर स्टैंड है इसको यूज करके हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी. तो दिस इज आवर प्रोमोटर रीजन at which our RNA polymerase recognize it and bind it for the start of the transcription at +1 site. अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि +1 साइड से जो अपर रीजन है 5 प्राइम की तरफ, दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम रीजन, और जो 3 प्राइम की तरफ रीजन उसको हम डाउनस्ट्रीम रीजन कहते हैं. और +1 वो रीजन है, वो साइड है जहां से हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी. इस जो है ना +1 से अपस्ट्रीम की तरफ -10 न्यूक्लियोटाइड और अपस्ट्रीम की तरफ -35 न्यूक्लियोटाइड, ये हमारा प्रोमोटर रीजन है. ये हमारा कौन सा रीजन है? प्रोमोटर रीजन है. और ये प्रोमोटर रीजन मेनली हमारे कोडिंग स्ट्रैंड पे होता है, अपोजिट टू टेम्पलेट स्ट्रैंड पे होता है, जहाँ पे हमारा आकर RNA पोलीमरेज बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद जो स्टार्ट होता है वो +1 रीजन होता है. इन केस ऑफ प्रोकैरियोट दिस -10 एट दिस डाटा बॉक्स इज कॉल्ड प्रिग्नो बॉक्स. इसको हम प्रिग्नो बॉक्स कहते हैं. ठीक है, अब इसमें जो सीक्वेंस होता है वो ये होते हैं TAT और -35 में TGTTGAC है. What actually the insertion process look likes are required. ठीक है, RNA polymerase जिस तरह डिस्कस किया कि इसके जो कोर एंजाइम के साथ सिग्मा फैक्टर आएगा, it will recognize the promoter region. प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करेगा और उस जाकर बाइंड करेगा एंड इट विल स्टार्ट इट्स एक्शन फ्रॉम द +1 साइड. स्टार्ट पॉइंट कौन सा होगा? +1. और +1 पे आने के बाद ये क्या करेगा? वहां से उस हेलिक्स को ओपन करना शुरू करेगा, क्योंकि RNA पॉलीमरेज मल्टीपर्पज एंजाइम है और ये हेलिकल एक्टिविटी भी करता है, ये पॉलीमराइजेशन भी करता है और इसके अलावा ये जो है ना और बहुत से फंक्शन परफॉर्म करता है, ये अनवाइंडिंग भी करता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एक ओपन स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल. ये क्या बोलेगी? ट्रांसक्रिप्शन बबल. जबकि रेप्लिकेशन केस में ये रेप्लिकेशन बबल थी, ओरिजिनल रेप्लिकेशन था. अब यहाँ पे क्या होगा? ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा. अब ये वो जगह है जहाँ से फिर हम अपनी जो है ना वो न्यूक्लियोटाइड अटैच करेगा हमारा पॉलीमरेज. इस जगह पे बाइंड करने के बाद जो सिग्मा फैक्टर वो डिसोसिएट हो जाएगा. इट विल डिसोसिएट फ्रॉम इट्स कोर एंजाइम, और जो कोर एंजाइम जो है ना वो उसमें जो फैक्टर्स हैं बीटा सब यूनिट दैट विल हेल्प इन द polymerization of this messenger RNA by using the nucleotide sequence of the template strand और RNTPs इस पे आकर अटैच होते जाएंगे और हमारा जो है ना उसकी elongation synthesis की होती रहेगी. Only one strand of the DNA that the template strand is transcribed. सिर्फ वही strand transcribe होगा जो template strand है. The other strand that is called the non-template strand can serve as a genetic function but not as a message for protein structure. तो इस केस में वो
जो है ना प्रोटीन स्ट्रक्चर मैसेंजर आरएनए के तौर पर एक्ट नहीं करेगा, टेम्पलेट के तौर पर काम नहीं करेगा। विच स्टैंड बिकम्स द टेम्पलेट वेरीज फ्रॉम वन जीन टू अनदर जीन। कौन सा जो है ना वो स्टैंड टेम्पलेट के तौर पर काम करता है, ये एक जीन से दूसरे जीन से वेरी कर, जैसे हमने प्रीवियस टाइम में डिस्कस किया कि एक जीन एक स्टैंड पे, दूसरा जीन दूसरे स्टैंड पे, तो जो जीन जिस स्टैंड पे एक्ट होगा वही स्टैंड हमारे लिए क्या होगा, टेम्पलेट स्टैंड के तौर पर एक्ट करेगा। The promoter sequences are not transcribed as a part of the final messenger RNA molecule। जो promoter sequences हैं वो messenger RNA का part नहीं होते, ठीक है। The first DNA triplet to be transcribed is almost invariably TAC। जो पहला mainly जो है ना वो पहला जो sequence transcribe होता है वो TAC region होता है। And since RNA will have uracil and not thymine as the complement of adenine, this means that the first codon on the messenger RNA will be AUG। तो ये जो सीक्वेंस होगा ये टेम्पलेट पे होगा, इसका कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, जो टी की जगह हमेशा क्या आएगा, यू आएगा। ए के सामने हमेशा चूंकि आरएनए बन रहा है तो यू आ जाएगा, और सी के सामने कम्प्लीमेंट्री क्या है, जी है, ठीक है। तो थायमीन की जगह इन प्लेस ऑफ थायमीन इन द मैसेंजर आरएनए देयर इज द यूरेसिल, ठीक है। तो एडेनिन के जो कम्प्लीमेंट है वो हमेशा यू आएगा। तो जो फर्स्ट ट्रिपलेट होता है मेनली वो टीएससी होता है, और मैसेंजर आरएनए पे वो मेनली एयूजी होगा। As elongation proceeds, elongation means the polymerization, the attachment of the ribonucleotides by using RNA polymerase. The polymerase moves the transcription bubble forward, exposing subsequent section of the DNA। तो वो जो पॉलीमरेज है ट्रांसक्रिप्शन बबल मूव करता जाएगा, और इस तरह हमारा जो सब्सिक्वेंट सेक्शन ऑफ डीएनए विल एक्सपोज फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। It simultaneously brings in nucleotides that are complementary to the DNA template and continues to assemble the messenger stand। तो इस तरह जो है ना वो न्यूक्लियोटाइड आकर अटैच होते रहेंगे और मैसेंजर आरएनए की असेंबली होती रहेगी। As with the replication, this occurs in 5' to 3' direction। जैसे हमने डिस्कस किया कि जिस तरह ट्रांसक्रिप्शन 5' to 3' direction होती है, रिप्लिकेशन 5' to 3' डायरेक्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन की भी जो डायरेक्शन है वो भी 5' to 3' डायरेक्शन होती है, ठीक है। इसीलिए टेम्पलेट स्टैंड कौन सा होगा, 3' to 5'। RNA synthesis proceeds in 5' to 3' direction, discussed with new nucleotide being added to the 3' end of the growing chain at a rate of about 14 nucleotides per second at 37 degrees centigrade। The chain length is synthesis की जो डायरेक्शन है 5' to 3' है, जो न्यू न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे वो 3' पे अटैच होंगे, जो रेट होगा वो 14 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड होगा, टेम्परेचर बेस्ट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। डीएनए दैट हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसक्राइब्ड रिवाइंड्स बैक इनटू इट्स डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। वो डीएनए का स्ट्रक्चर जो ट्रांसक्राइब हो चुका है वो क्या होगा, डबल हेलिक्स में दोबारा रिवाइंड होगा, क्योंकि हमने उसकी रिप्लिकेशन तो नहीं करनी, हमने सिर्फ अपना मैसेंजर आरएनए बनाना है, उसको दोबारा रिवाइंड कर देना ताकि जो जीनोम है वो कंजर्व रहे। द पार्ट ऑफ द मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड दैट इज ऑलरेडी असेंबल्ड रिमेन्स अटैच्ड टू द एंजाइम कॉम्प्लेक्स बट हैंग आउट ऑफ द वे ऑफ द प्रोसेसिंग मशीनरी। जो आरएनए बन चुका है वो उसके साथ असेंबल्ड रहेगा, अटैच रहेगा, और उसके साथ जो है ना वो प्रोसेसिंग मशीनरी चलती रहेगी। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट इट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ अकर साइमल्टेनियसली, जबकि यूकैरियोट्स में थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है, हम फर्दर टाइम में डिस्कस करेंगे। इन बोथ डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज रिएक्शन पायरोफॉस्फेट इज प्रोड्यूस्ड। जब डीएनए पॉलीमरेज काम करे या आरएनए पॉलीमरेज काम करे, पायरोफॉस्फेट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। It hydrolyzed to orthophosphate in a reaction catalyzed by the enzyme pyrophosphatase। pyrophosphatase की मदद से it will hydrolyze to the orthophosphate, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ पायरोफॉस्फेट मेक्स डीएनए एंड आरएनए सेंसेस इरिवर्सिबल। अगर पायरोफॉस्फेट की हाइड्रोलाइसिस होगी तो ये डीएनए और आरएनए सेंसेस क्या कर देते हैं, इरिवर्सिबल कर देते हैं। इफ पायरोफॉस्फेट लेवल वर टू हाई, अगर इसका लेवल बहुत हाई हो जाए, डीएनए एंड आरएनए वुड बी डिग्रेडेड बाय रिवर्सल ऑफ द पॉलीमरेज रिएक्शन। तो ये डीएनए और आरएनए क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। जिस तरह ये सेंसेस करते हैं, वो डिग्रेड करना शुरू कर देता है। At termination, the polymerase recognizes। अब पहले हमारे पास इनिशियल स्टेप था, सेकंड हमारे पास एलोंगेशन जिसमें न्यूक्लियोटाइड की अटैचमेंट होती है राइबोन्यूक्लियोटाइड की। अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या है, एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनेशन। At termination, the polymerase recognizes another code on DNA near the end of the gene that signals
the separation and release of the completed messenger RNA. अब messenger RNA की क्या completion होनी है, उसको DNA टेम्परेचर से सेपरेट होना है, RNA polymerase को सेपरेट होना है। उसके लिए हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं। The transcribed region of DNA template contains stop signals। जो DNA template है उसमें हमारे पास stop signal होते हैं। Prokaryotic have two classes of termination signals. One is called Rho dependent termination, second is called Rho independent termination. Rho is a protein that when attached with the RNA polymerase will dissociate from the DNA template and the process of transcription will stop. और Rho independent में जो sequence of the nucleotides है वो क्लासिकल जो है ना एक important role play करेंगे in the termination of the transcription. ये हमारे पास जो है ना टेम्पलेट डीएनए को इस्तेमाल करते हुए नेशनल आरएनए बन रहा है। जो ही रो फैक्टर आया, ठीक है, जब इसने रो फैक्टर आइडेंटिफाई स्टॉप सिग्नल, जब रो फैक्टर आया तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डिसोसिएट हो जाएगा और नेशनल आरएनए क्या हो जाएगा, रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है, तो रो इज एन एटीपी डिपेंडेंट आरएनए स्टिमुलेटेड हेलिकेज which binds to the signals, thus RNA polymerase cannot move further. अब इसमें RNA polymerase जो है ना further move नहीं कर सकेगा, so it dissociates from DNA, they disrupt the nascent RNA, DNA duplicates, release nascent RNA। इस तरह जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और जो नेशनल आरएनए है वो रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है, तो रो डिपेंडेंट में क्या होता है, ये अपने स्टॉप सिग्नल को आइडेंटिफाई करने के बाद आरएनए पॉलीमरेज साथ आकर बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद उसको फर्दर मूव नहीं करने देता। जब फर्दर मूव नहीं होता तो उससे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाती है। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, मोस्ट इंडिपेंडेंट terminators have two distinction features। इसमें दो फीचर होते हैं। One is palindromic GC rich regions which is followed by AT rich regions। ठीक है, thus RNA transcript of this palindrome is self complementary sequence। ये आपस में self complementary बना देते हैं, that is permitting the formation of hairpin structure, जिससे hairpin structure बन जाती है और वहां से वो dissociate हो जाती है। The second feature is the highly conserved string of the A residue, जिसमें जो A residue ज़्यादा होता है in the template stem that are transcribed into U residue, जिससे जब ट्रांसक्रिप्शन होती है जो उससे U residue बन जाते हैं, the RNA transcript ends within or just after that। तो जब भी ये A residues को इस्तेमाल करते हुए U residue ट्रांसक्राइब होते हैं तो उस वक्त ही ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस या उसी वक्त एंड हो जाता है या उसके फौरन बाद एंड हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करें तो हमारे पास देखें ये एक रीजन पे हमारे पास जो है ना इसका कम्प्लीमेंट्री रीजन, एक रीजन ये है, इसका दूसरा कम्प्लीमेंट्री रीजन ये है। इसको इसके सामने आ गया हमारे पास ए, चूंकि ये टेम्पलेट स्टैंड था। ठीक है, ये जी सी 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 जी सी। ठीक है, और इसका जो कम्प्लीमेंट्री है वो बाई चांस वो ये बन गया। ठीक है, जी सी, ठीक है, जी जी सी यू। तो अब इस तरह ये आपस में एक हेयर पिन स्ट्रक्चर बना लेंगे, हेयर पिन स्ट्रक्चर इस तरह बन जाएगी इनके आपस में। ठीक है, देखिए ये जी आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये जी, इसके सामने कौन सा आ गया, ये सी आ गया। ठीक है, ये सी आ गया। ठीक है बात। अब उसके साथ हमारे सामने जो है ना, इसके सामने ये हमारे पास आ गया, ये दूसरा सी आ गया। ठीक है, ये दूसरा सी आ गया, सी आ गया, इसके सामने जी, फिर सी आ गया, फिर सामने जी, फिर सी आ गया, फिर इसके सामने जी, और फिर ये जी आ गया सामने सी, फिर ये सी आ गया सामने जी। तो ये आपस में एक हेयर पिन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये एक वे है ऑफ टर्मिनेशन का। सेकंड वे ये है कि उसके एंड पे जब आ जाते हैं हमारे पास एक कंसर्न सीक्वेंस एडेनिन वाले, तो इसका अल्टरनेट जो कम्प्लीमेंट्री क्या अटैच होंगे, यूरेसिल अटैच होंगे। जब ये सीक्वेंस आएंगे तो इस वक्त भी टर्मिनेशन जो है ना वो ट्रांसक्रिप्शन की हो सकती है या इसके फौरन बाद ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। सो देयर आर टू मेथड्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। वन इज कॉल्ड रो डिपेंडेंट, सेकंड इज कॉल्ड रो इंडिपेंडेंट। रो डिपेंडेंट में रो प्रोटीन अगर बाइंड करती है जो फर्दर ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसीड नहीं होने देती, और रो इंडिपेंडेंट में जो सीक्वेंस है, कंजर्व सीक्वेंस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो सकते हैं या वो एडेनिन सीक्वेंस हो सकते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। It will go immediately, messenger RNA will go immediately to the translation phase on the ribosome. Immediately, in case of prokaryote, वो साथ-साथ होते हैं, simultaneously होते हैं। This messenger RNA delivers its message in the codons that are the master code for the protein synthesis.
सिंथेसिस। अब ये मैसेंजर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होगा। द लेंथ ऑफ द फाइनल मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द पॉलीपेप्टाइड दैट इनकोड्स। अब जो लेंथ है मैसेंजर आरएनए की वो कितनी होनी चाहिए, वो उस पॉलीपेप्टाइड पर डिपेंड करती है। द स्मॉलेस्ट में कंसिस्ट ऑफ 100 न्यूक्लियोटाइड्स एंड एवरेज वन 1200 न्यूक्लियोटाइड्स एंड द लार्जेस्ट में बी द several thousand न्यूक्लियोटाइड्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो प्रोकैरियोटिक आरएनए होता है वो पॉलीसिस्टोनिक हो सकता है, ठीक है जी, क्योंकि अंदर वन प्रमोटर बहुत सी प्रोटीन बन सकती है। और बहुत इंपॉर्टेंट जो फिनोमेना प्रोकैरियोट में ये है कि प्रोकैरियोट में इंट्रॉन्स नहीं होते, इनको रिमूव करने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर्स इन साइमल्टेनियसली। और जो प्रोकैरियोट्स के केस में, बैक्टीरिया के केस में ट्रांसक्रिप्शन होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, इसलिए ट्रांसलेशन को फौरी तौर पर स्टार्ट होना होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो यूकैरियोट में पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। In the next we will discuss about the complete summary of the transcription. तो this is the promoter region जिसको हमारा कौन आरएनए पॉलीमरेज जहाँ करा कर क्या करेगा, बाइंड होगा, ठीक है। और किसकी मदद से, सिग्मा की मदद से बाइंड होगा। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इनिशिएशन कोडान है जहाँ से हमारी क्या स्टार्ट हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए हमने किसको लेके आना है, वो हमने आरएनए पॉलीमरेज को आना है। आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे बाइंड हो रहा है, प्रमोटर के साथ बाइंड हो रहा है। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए को अनबाइंड करेगा। तो ये सिर्फ एक ही स्टैंड को यूज करेगा जिसको हम टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं फॉर द पॉलीमरेज एक्टिविटी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द आरएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। क्योंकि ये हमारे पास जो है ना टेम्पलेट स्टैंड ये वाला है, ये अपर वाले हमारे पास टेम्पलेट स्टैंड, इसकी डायरेक्शन देखें 3' to 5' है, तो जो सेंसेस होगी वो 5' to 3' सेंसेस होगी। अब नेक्स्ट जाएं तो हमारे पास जो अपर स्टैंड यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड है, तो आरएनए पॉलीमरेज मूव अलोंग द स्ट्रैंड एडिंग कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स एज डिक्टेटेड बाय द डीएनए टेम्पलेट। इस डीएनए टेम्पलेट को यूज करके हमने अपने न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करना है। तो जूं जब इसके सामने अगर ए होगा तो इसके सामने क्या लग जाएगा, यू लग जाएगा, क्योंकि टी तो लगता नहीं है। अगर यहाँ पे जी होगा तो सामने क्या लग जाएगा, सी लग जाएगा, यहाँ पे सी, यहाँ पे जी अटैच हो जाएगा। तो इट विल पॉलीमराइजेस बाय यूजिंग दिस टेम्पलेट एज ए बेस सीक्वेंस, ठीक है। तो उसकी जो रीडिंग मैसेंजर अंडरस्टैंड रीड इन द 5' to 3' डायरेक्शन, सेंसेस किस में हो रही है, 5' to 3' डायरेक्शन में, ठीक है। जबकि जो टेम्पलेट स्टैंड वो क्या होगा, 3' to 5' स्टैंड्स में। तो पॉलीमरेज मूव करता जाएगा, द पॉलीमरेज कंटिन्यूज द ट्रांसक्राइबिंग प्रोसेस अंटिल इट रीचेस द टर्मिनेशन साइट। जब टर्मिनेशन साइट पे पहुंचेगा तो मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज रिलीज टू बी ट्रांसलेटेड, और वहाँ से वो जो है ना जब रो फैक्टर आ जाएगा या वो रो इंडिपेंडेंट फैक्टर डिपेंड करता है टाइप ऑफ टर्मिनेशन पे, then it will release this messenger RNA will use in the translation, ठीक है। तो this is all about the transcription in the prokaryotes. Up till now we have discussed about the transcription in the prokaryotes. Now we will discuss about the transcription in the eukaryotes, ठीक है। Eukaryote transcription is much more complicated as compared to the transcription in the prokaryote. Why? There is a complex system, there is a nucleus, there is a number of the chromosomes. जो यूकैरियोट की ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस में होगी, ठीक है, जबकि प्रोकैरियोट की ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि प्रोकैरियोट में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इट रिक्वायर्ड मेनी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन्स, इसमें बहुत सी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती हैं। 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड, हर आरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड होता है। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन नीड्स promoter and upstream regulatory regions, उसी तरह promoter की requirement होगी। Enhancer and silencers are DNA sequences that regulate the rate of initiation of transcription by RNA polymerase 2, ठीक है। Enhancer और silencer जो है वो DNA sequences होते हैं जिनको क्या करते हैं, जो रेगुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन को RNA polymerase 2 की मदद से। There are different RNA polymerase. RNA polymerase 1 is required for the synthesis of ribosomal RNA. RNA polymerase 2 is mainly required for synthesis of the messenger RNA, small nuclear RNA, and the scRNA. जबकि RNA polymerase 3 is required for the synthesis of the transfer RNA. RNA polymerase 1 के अपने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, RNA polymerase 2 के अपने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, जबकि RNA polymerase 3 के अपने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। तो there are different transcription factors that are required for the transcription in the eukaryotes, each one for its own specific purpose, ठीक है। तो ये फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की मदद से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो एक मीडिएटर कॉम्प्लेक्स बना देता है that will perform the
elongation of the nucleotides. यूकैरियोट का जो प्रोमोटर है ये भी डिफरेंट होता है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट में देखा था -10 और -35 की पोजीशन में था, जिसको हमने -10 की पोजीशन पे टाटा बॉक्स जो हमने कहा था वो प्रेमनो बॉक्स था। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो प्रोमोटर रीजन है वो -25 टू -30 रीजन या -70 टू -80 रीजन होते हैं। -25 टू -30 में टाटा बॉक्स होता है, जबकि -70 टू -80 में क्या होता है, गेट बॉक्स होता है। इसमें एनहांसर और साइलेंसर रीजन भी होते हैं अपस्ट्रीम साइड पे, और रेगुलेटरी एलिमेंट्स भी होते हैं। अब ये जो रीजन है ना, ये दिस इज कॉल्ड द प्रोमोटर रीजन, दिस इज कॉल्ड द प्रोमोटर रीजन। अच्छा, इसमें हम एक बात डिस्कस करना भूल गए कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होते हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चर रीजन और टर्मिनेटर, ये सारे एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास +1 साइट है, इस पूरे साइट, अच्छा, जो डाउनस्ट्रीम रीजन पे +1 साइट है, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें प्रोमोटर थोड़े से डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू द other steps of transcription are similar as in the prokaryote, just like the binding of the RNA polymerase and the initiation, elongation, termination. ठीक है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि जो RNA पोलीमरेज है उसके 20 सब यूनिट्स होते हैं यूकैरियोट में, जबकि RNA पोलीमरेज प्रोकैरियोट में सिर्फ कितने सब यूनिट थे, ओनली 5 कोर सब यूनिट, और सिग्मा को मिलाकर 6 सब यूनिट बन जाते हैं। तो जो डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एट द एंड पे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, देयर इज नो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन पे कैसा प्रोकैरियोट, क्योंकि वो सिंपल आरएनए होता है, उसमें कोई जो इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, उसको कहीं माइग्रेट नहीं करना होता, उसको जो है ना साइटोप्लाज्म में ही रहना होता है, वहाँ ही उसने ट्रांसलेट होना होता है, इसलिए उसकी कोई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। जो आरएनए यूकैरियोट में होता है वो उसकी सेंसिस की जो लोकेशन है वो न्यूक्लियस है। अब उसने न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आना है, प्रोटीन कहाँ बननी है, साइटोप्लाज्म में बननी है, इसलिए उसने साइटोप्लाज्म में आना है। साइटोप्लाज्म में आने के लिए उसने कुछ मॉडिफिकेशन करनी होती है, दैट आर कॉल्ड द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, और कुछ ऐसे रीजन जो उसमें नॉन कोडिंग रीजन हैं जो नेसेसरी नहीं है उसको रिमूव करने होते हैं, दीज आर कॉल्ड द इंट्रॉन्स। तो द नेसेंट आरएनए आल्सो नोन एज द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट नीड्स टू बी मॉडिफाइड टू बिकम फंक्शनल आरएनए। अब उसको हमने क्या करना है, मॉडिफाई करना है, जिससे एक फंक्शनल आरएनए बन जाए, ट्रांसफर आरएनए बन जाए, मैसेंजर आरएनए बन जाए, जो हमारी रिक्वायर्ड के मुताबिक काम कर सके। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए कॉल्ड एज हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए। उस प्राइमरी को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए बोलेंगे। हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए आर लार्जर देन मैच्योर आरएनए। ये हमारे मैच्योर आरएनए से क्या होगा, ये लार्जर होगा, क्योंकि उसमें इंट्रॉन्स भी होते हैं, नॉन कोडेड रीजन होते हैं। There are 4 steps that involve in the post-transcription modification. One is called the splicing, that involve the removal of the introns, addition of the 5' cap guanine मिथाइल की जो है ना एक कैप अटैच होगी 5' एंड पे, और 3' एंड पे एडेनिन की टेल अटैच होगी, और आरएनए एडिटिंग। दीज आर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, नाउ हैव अ लुक एट द स्प्लाइसिंग। देखिए हमारे पास जो आरएनए डीएनए टेम्पलेट को यूज करके हमने क्या बनाया, आरएनए बनाया। इस आरएनए को हम प्राइमरी मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, अनमैच्योर आरएनए बोलते हैं। इसमें एक्सॉन्स भी हैं, इसमें एंट्रॉन्स भी हैं। ठीक है, अब जो एक्सॉन्स हैं ये हमारे जो है ना फंक्शनल हैं, और एंट्रॉन्स है नॉन फंक्शनल, ये इसकी हमें जरूरत नहीं है। हमने क्या करना है, हमने इनको रिमूव करना होता है बाय यूजिंग ए स्पेशल एंजाइम दैट आर कॉल्ड द स्प्लाइसोसोम। ट्रांसक्रिप्ट प्रोसीड्स बाय स्पेशल एंजाइम, दिस complex of the enzyme is called the spliceosome। ये क्या करेंगे, ये एक लेरिट फॉर्म करेंगे, that is mainly used to eliminate, to remove the introns। ठीक है, अब इससे हमारे सारे इंट्रॉन्स रिमूव होंगे, इंट्रॉन्स 1 रिमूव, इंट्रॉन्स 2 रिमूव, इंट्रॉन्स 3 रिमूव, then spliceosome release and the larit excise the introns and exon will splice with each other, and this RNA then it is called the mature RNA। messenger RNA ट्रांसक्राइब कैन नाउ बी ट्रांसलेटेड। लेकिन अब इस आरएनए को भी साइटोप्लाज्म में आने के लिए अब इसमें हमने क्या करनी है, कैपिंग करनी है। 5' पे हमने कैप लगानी है और 3' हमने टेल लगानी है, क्योंकि जो न्यूक्लियसेस होते हैं, राइबोन्यूक्लियस होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो इस आरएनए को डिग्रेड कर देते हैं। तो अब हमने इंट्रॉन्स तो रिमूव कर दिए इसको फंक्शन करने के लिए, लेकिन अब इसके 5' पे हम क्या लगाएंगे, कैप लगाएंगे। ठीक है, और 3' क्या लगाएंगे, टेल लगाएंगे, ताकि इसको हम क्या कर सकें, महफूज रख सकें। किससे महफूज रखें, जो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियसेस होते हैं, राइबोन्यूक्लियस, उस पर अटैक ना कर सकें। यूकैरियोटिक मैसेंजर RNA, it is a mature RNA। देखिए, this is a cape at the 5' end having no introns, में कोई इंट्रॉन्स नहीं है। अब ये लीडर सीक्वेंस से 5' end की तरफ, और
जो है ना टेलर सीक्वेंस है 3 प्राइम एंड की तरफ, और 3 प्राइम हमने क्या लगा दिया, पोली या टेल लगा दी। ठीक है, हमने गुआनिन की क्या लगा दी, यहाँ पे कैप लगा दी। ठीक है, गुआनिन की कैप लगा दी, और ये हमारे पास पूरा जो है ना वो कोडिंग सीक्वेंस है। इसमें सारे के सारे जो कोड हैं, दीज आर नाउ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स। जो AUG है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टार्ट कोडॉन, एंड जो UAG, इट इज द स्टॉप कोडॉन। This is now the mature eukaryotic RNA. It is now ready to transport in cytoplasm. It is now ready to translate to form the protein. So 5 prime cape and 3 prime tail is important stability to messenger RNA by protecting from specific exonucleases. अगर इसमें कैप और टेल नहीं लगेगी तो इसमें क्या हो जाएगी, डिग्रेडेशन हो जाएगी। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन एंड द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की हमारे पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थे हमने डिस्कस किया कि टेम्पलेट है, उसमें RNTPs राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, और RNA पॉलीमरेज है। RNA पॉलीमरेज मल्टीपर्पज एंजाइम है। 3 बेसिक जो है ना वो इसमें स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, एलांगेशन एंड टर्मिनेशन। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में थोड़ा सा डिफरेंस है, उनके प्रमोटर साइट में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसका RNA पॉलीमरेज में थोड़े से डिफरेंसेस हैं, और RNA पॉलीमरेज के सबयूनिट्स में डिफरेंसेस हैं, और RNA ऑफ द प्रोकैरियोट यूकैरियोट आर डिफरेंट। प्रोकैरियोट का जो RNA होता है वो सिंपल होता है, ट्रांसक्रिप्शन के साथ ही ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है, जबकि यूकैरियोट के RNA को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन से गुजर कर उसको ट्रांसलेशन की तरफ जाना होता है। दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द जेनेटिक कोड।